Hello student, myself Professor Anjali Patel from Ropel BBA College, Vapi. Our subject entrepreneurship development with respect to your semester 5 in your TY BBA. Today in this video there will be a revision section of unit 1 because all the points which are covering in unit number 1, that is conceptual framework, is being covered in your video sections, and the remaining portion which are remaining in live section will be covered in our live section. So in this video we will go through the brief part of the unit number 1. Okay, what are the topic being covered in unit number 1, and brief idea about the topic which are being covered in unit number 1. In unit number 1 we have learned about the meaning and definition of in unit number 1 we have learned about the meaning and definition of entrepreneur. Then we have learned the basic concept of entrepreneurship and enterprise. Then we have learned about the entrepreneur, the difference between the entrepreneur and entrepreneur, the difference between the entrepreneurs, relation between your entrepreneurs and entrepreneurship, qualities of entrepreneurs, functions of entrepreneur, which are being covered in video section also and live section also. In after that we have learned about the difference between entrepreneur and manager. Then we have learned about the rural entrepreneurship, the need of rural entrepreneurship, problems of rural entrepreneurship, how to develop the rural entrepreneurship. And then we have learned about the concept of women entrepreneurship and its barriers. So this was a topic about the thing which we have covered in the video section and live section also. Then we have learned about the types of entrepreneurs, development of entrepreneurship in India, barriers of entrepreneurship, various institute of an entrepreneurship. So these are all the topic which are being covered in unit number 1, which is weightage is 20%. Unit number 1 का weightage 20% जैसा 20 to 30% है, और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपका ये यूनिट नंबर 1 जो है वो लेंदी है. सो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ यूनिट नंबर 1 of entrepreneurship development is being covered in the video section. Now we will have a brief idea about the topic being covered in unit number 1. In unit number 1 we have start with the general meaning of an entrepreneur. We know that entrepreneur is a person who has innovative skills, who has a risk taker ability, and who has a organizing skill. Then we have move to another concept, that is entrepreneur. Entrepreneur seem like entrepreneur, but entrepreneur is considered to be an employee within the already startup organization. जो पहले से organization startup है उसमें वो as a employee काम करता है. Same thing जो entrepreneur करता है वही चीज़ वो करता है. Innovative skills उसके पास है, उसके पास risk taker ability है, उसके पास organizing skill है, but वो दूसरे के organization में जो already setup है उसमें वो काम कर रहा है as an employee, so he will be considered to be an entrepreneur. Then we have moved towards the difference between the entrepreneur and entrepreneur. You know very well the dependency of entrepreneur and entrepreneur will be independent and dependent. And then we have learned about the raising of funds. Entrepreneur will raise the fund by its own, and entrepreneur will raise the funds by, he will not raise the funds because the organization will be responsible to raise the fund. Then we have learned about the risk point, that is entrepreneur will bear the risk, but entrepreneur being an employee he will not bear the risk. Operation, entrepreneur will operate from outside, entrepreneur will operate within the organization. Then we have learned about the qualities of an entrepreneur. In that qualities of entrepreneur we have learned about the first point, motivation towards achievement. Motivation towards achievement is nothing but if you have a strong motivation towards your goal, target, your objective, then you can achieve your target, achieve your achievement easily. So achievement कुछ करने की चाह होगी तो आप automatically motivate होगे. Creativity, as an entrepreneur you should be creativity in all the respect in which you are involved. Clarity, you should be clarity about the nature, type of the business, where to locate the business, what activity need to be undertaken, what will be production method, कहाँ पे business locate करना है, पैसे कहाँ से raise करना, वो clarity होनी चाहिए. Business secretary, as an entrepreneur you need to maintain a business secretary because this information should not pass to a competitor. Human relation ability, as an entrepreneur you need to maintain a good human relation with all the stakeholder. Communication ability has same like human ability, but यहाँ पे आपको communicate effectively करना है हर एक stakeholder के साथ. Mental ability, you should be mental strong to handle the downfall of an organization or entrepreneurship, or to handle day-to-day stress. And risk taker, you should be strong enough to take a risk whenever it occur in the business or whenever you need to grab the opportunity. That was the quality of entrepreneur you have learned. Then we have learned about the functions of an entrepreneur. In function of entrepreneur, what we have learned that the function of entrepreneur, what we have learned that in function of an entrepreneur
we have learned about the activity being performed by an entrepreneur or activity being expected to perform by an entrepreneur. The first activity is that you need to be have a idea generation, because being an entrepreneur you should generate idea from various sources. Then determination of objective, depend upon the nature and type of the business you should determine the objective. Then the raising of funds, being your entrepreneur you need to raise the fund internally and externally. Then you need to procure the machine, should know the type of the machinery, install machinery, capacity of the machinery, manufacture and supply of the machinery, lifetime of the machinery, हर एक चीज मशीनरी के बारे में डिटेल होनी चाहिए. Procurement of raw material, that is you should procure the raw material by those supplier who supply the raw material cheap way and a regular supply of the raw material, so that the cost of production can be reduces and you can compete the organization. Market research, you should have a continuing market research about what is the demand of the product, what is the demand of the product, मार्केट में क्या डिमांड है, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, जिससे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं. Forms of an enterprise, you should decide about the forms of enterprise, whether you need to study a sole proprietor, partnership, or a joint venture. So you can decide the objective about your entrepreneurship. Assumption of risks, you should assume all the possible risks which occur in the future, because we know that future is uncertain. Innovation, you should be innovation in all the respect in whenever you are starting an entrepreneurship. Business decision, you should be strong, you should decide each and everything, so you are taking a business decision, that is what to produce, when to produce, what type of the business, where to look at the business, what will be nature of the business, what will be form of the business. तो हर एक चीज आपका business decision ही होता है. And last, managerial function, being an entrepreneur you are performing a manager function, that is planning, organizing, staffing, directing. So this was the function you have learned about. Function of an entrepreneur you have learned. Then difference between entrepreneur and manager, that we have learned in a table formation. Hope you remember that portion also. Then we have learned about the rural entrepreneurship. Rural entrepreneurship is nothing but any industry that is located in rural area having a population of 20,000 and which produce goods and services without the use of the power. And दूसरा आपका रिवाइज में क्या था कि आपका इंडस्ट्री लोकेटेड होना चाहिए रूरल एरिया में, और जिसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 3 कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे रूरल इंडस्ट्री. तो रूरल इंडस्ट्री इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड हैज अ इंडस्ट्री वेयर इन्वेस्टमेंट इज अप टू 3 crores in plant and machinery and industry located in rural area, and population of that village or a town is up to 20,000. That was your rural entrepreneurship. In that we have learned about the needs for rural entrepreneurship. We know that rural entrepreneurship का main जरूरत क्या है कि we need to generate employment, we need to reduce the disparities, we need to reduce the disparities among the among the rural area and urban area. So that was to reduce disparity, balance regional development, दोनों रीजन में डेवलपमेंट हो. जिसे आपका जैसे रूरल इंडस्ट्री स्टार्ट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्कूल एंड हॉस्पिटल एंड रोड डेवलप होगा, तो वो पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट होगा. प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेरिटेज, जैसे आप रूरल इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे तो यू विल एबल टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द आर्ट एंड क्रिएटिविटी. जैसे कि एशियन टाइम से आप अपनी हेरिटेज को मेंटेन कर सकते हो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बीइंग अ रूरल इंडस्ट्रियल यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, बिकॉज अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगा, और दूसरा आपका स्लम एरिया कम हो जाएगा, सोशल टेंशन कम होगा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रहेगा. देन द प्रोटेक्शन ऑफ एन एनवायरमेंट, being a rural entrepreneurship you produce a product which are eco-friendly, so in turn you are protecting your area also. So this was a need for rural entrepreneurship. After that we have learned about the problems of rural entrepreneurship. We know that starting a rural entrepreneurship is not easy. There are lots of problems being faced by the rural entrepreneurs. So first can be a lack of infrastructure facility, because proper facility वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है, रोड प्रॉपर नहीं होती, इलेक्ट्रिक पावर नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वाटर सप्लाई नहीं होती, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, विच बैडली अफेक्ट द इंडस्ट्री एक्टिविटी. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो रूरल इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी, और अपनी प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो अपने विलेज मनी लेंडर से पैसे हायर करते हैं. लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ रूरल इंडस्ट्री बीइंग अ लेबर इंटेंसिव दे कैन नॉट एबल टू अफोर्ड द हाईली सोफिकेटेड टेक्निक एंड मेथड प्रोडक्शन, बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो उसके कारण आपका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और वो हायर नहीं होता, तो उसके कारण भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है.
मार्केटिंग प्रॉब्लम आपको जो रूरल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होता, बिकॉज प्रमोशन कैसे करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से यूज करना और कस्टमर का फीडबैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, वो हर एक चीज की नॉलेज नहीं होती, और रिसर्च कैसे करना मार्केटिंग का, मार्केट का, वो उसके बारे में अवेयर नहीं होते रूरल पीपल, रूरल एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इज बीइंग डेवलप इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड हैज बीन पेनिटेड इन रूरल एरिया थ्रू इंटरनेट, बट स्टिल रूरल पीपल जो है वो लेस अवेयर होते हैं उसके बारे में, इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती है अबाउट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, एंड उसके कारण वो वेरियस फैसिलिटी जो गवर्नमेंट दे रही है उसके बारे में भी नॉलेज उसको नहीं होती है। रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, बिकॉज उसको कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे स्टोर करना है, वो जो ये टैक्स है ना प्रोक्योर करना स्टोर करना, वो लोग को समझ में ही नहीं आता है, और वो लोग को वो चीज़ में वो इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो उससे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो मिडल मैन है उससे हायर प्राइस में से खरीद लेते हैं और उससे अपना कॉस्ट बढ़ा देते हैं। लीगल प्रोडक्ट, दे हैव वेरी लीगल फॉर्मेलिटी इन ऑब्टेन द गवर्नमेंट अप्रूवल एंड लाइसेंस फॉर कैरिंग आउट द इंडस्ट्री एक्टिविटी। कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करे तो आपका गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटी आपको करनी होनी चाहिए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पीपल, तो उसके कारण आपका लीगल प्रॉब्लम भी फेस हो सकता है, तो लीगल प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट वन इज हाउ टू डेवलप अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रॉब्लम है उसको आप प्रोवाइड करोगे, ऑटोमेटिकली रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप होगी, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं उसको आप प्रोवाइड करोगे, रॉ मटेरियल आपको नहीं मिला उसको प्रोवाइड करो, प्रॉब्लम विल बी सोल्व। फाइनेंस नहीं मिला उसको प्रोवाइड करो, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करो जिससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम के बारे में आप अवेयर रहोगे। एजुकेशन प्रोवाइड करो जिसके बारे में वो लोग को नॉलेज रहेगा, दे विल बी ट्रेड। वेरियस फैसिलिटी जो गवर्नमेंट दे रही है वो प्रोवाइड करो जिससे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट हाउ टू डेवलप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। देन वी हैव लर्न अबाउट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वी नो वेरी वेल दैट द एंटरप्राइज कैन बी ओन एंड कंट्रोल बाय द वुमन। ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज जो है वो ओन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है वुमेन से, विद अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल एंड गिवन एटलीस्ट 51% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू वुमन, तो उसको हम बोलेंगे वुमन एंटरप्रेन्योर। तो वुमन एंटरप्रेन्योर क्या है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप बीइंग ओन एंड कंट्रोल बाय वुमन हैविंग अ financial interest 51% of the capital and giving at least 51% of employment generated to women, that is considered to be a woman entrepreneur. Next is problems of woman entrepreneur. The problems of woman entrepreneur, that is being a woman entrepreneur का कौन से problems face होती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम woman entrepreneur का यही है कि प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। woman entrepreneur को शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होते, एक्सटर्नल सोर्स से वो फंड प्रोक्योर नहीं कर सकती, और वुमेन को लेस क्रेडिट वर्टनेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया है। लिमिटेड लाइबिलिटी का तो लिमिटेड मोबिलिटी है, जैसे मेन एक दूसरे के एक जगह से दूसरे जगह इजिली मूव ऑन कर सकती है, पर बीइंग अ वुमेन यू कैन नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, सेफ्टी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम के कारण आप इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में आउटपुट जनरेट नहीं हो सकते। फैमिली टाइप, जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन की ड्यूटी यही होती है कि चिल्ड्रन मतलब बच्चे ऊपर ध्यान रख के, अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली पे ध्यान रख के, बीइंग अ मैरिड वुमन बैलेंस बिटवीन बिजनेस और फैमिली जो करना है वो डिफिकल्टी हो जाती है, और कभी कभी अपने टाइम प्रॉपर नहीं दे सकती बिजनेस में, कभी कभी अप्रूवल सपोर्ट भी नहीं मिलता हस्बैंड में, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम फेस हो सकता है। मेल डोमिनेशन, हमें पता है कि इंडिया में अभी भी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो वो वुमन को दूसरे अबलनारी के थ्रू ही आइडेंटिफाई होता है, उसके कारण भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ एजुकेशन इलिटरेसी, वी नो इट इज द बिगेस्ट रूट कॉज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेक ऑफ एजुकेशन होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हो, वुमेन को अवेयर नहीं होता बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो उसके कारण भी, एजुकेशन के कारण भी वुमेन को फेस करना होता है। लो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, वुमेन ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है, बिकॉज उसको प्रोटेक्टेड लाइफ प्रोटेक्टेड लाइफ जीना चाहती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड लाइफ वो रिस्क कभी भी इतना ज़्यादा नहीं लेगी जैसे मैन एंटरप्रेन्योर देते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप। Now in that we have learned about the EDI, that is Entrepreneurship Development Institute of India. Then we have learned about that is another was your
NIESBUD, that was your National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India. SIDBI is Small Industrial Development Bank of India. CED, that is Center for Entrepreneurship Development. STEP, that is Science and Technology Entrepreneurship Park. इसका डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, डिटेल हर एक इंस्टीट्यूट का इंडिविजुअल वीडियो भी दिया, तो गो थ्रू इट बिकॉज आई एम अगेन नॉट एक्सप्लेनिंग, आप इंडिविजुअल वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे यही इंटेंशन है कि क्या क्या टॉपिक कवर हुआ है, क्या क्या चीज कवर है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रही, तो आपको एक साथ यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में नॉलेज हो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, उसमें भी हमने प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा है। प्री इंडिपेंडेंस में इतना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं हुआ है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हुआ। रणछोड़ करके जो था वो एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट कर रहा था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस में खाली एशियन टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिट ही उतना पता है, पर इतना डेवलपमेंट, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज सभी अपने प्रोडक्ट से इतने वो जो प्रमोशन करना था वो नहीं करे। तो प्री इंडिपेंडेंस में इतना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिफोर योर प्री इंडिपेंडेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिफोर आफ्टर योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में इतना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हुआ था बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट था, इतना डेवलप नहीं हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, दैट वाज टॉपिक बीइंग कवर्ड इन योर यूनिट नंबर 1. After this, we have learned about the types of entrepreneurship. I have already explained you that there are many types of an entrepreneurship. जो main types जो है वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, इमिटेट एंटरप्रेन्योर है, फैबिन एंटरप्रेन्योर है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर मतलब जो इनोवेटिव वे में कुछ नया चीज प्रोड्यूस कर रहा है, नई मेथड प्रोडक्शन ला रहा है, उसको बोलेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेट एंटरप्रेन्योर मतलब दूसरे की चीज जो ऑलरेडी उसने कोई नई चीज डेवलप की है उसको वो खाली अडोप्ट कर रहा है, दैट इज इमिटेट एंटरप्रेन्योर। फैबिन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है, वो दूसरे की चीज कब अडोप्ट करेगा, जब उसको लगे कि उसके बिजनेस में नुकसान हो रहा है, दैट इज फैबिन एंटरप्रेन्योर। एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, ये कभी भी दूसरे की चीज अडोप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक बिजनेस नुकसान में भी चला जाएगा, तब तक भी फिर भी वो कभी भी किसी का टेक्नोलॉजी का तो कुछ भी वो डेवलप एडोप्ट नहीं करेगा बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है कि उसका बिजनेस एग्जिस्टेंट बिजनेस है वही सही। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में कुछ नई चीज करनी है, इमिटेट एंटरप्रेन्योर में कोई दूसरे ने जो की है उसको एडोप्ट करते हैं। फैबिन एंटरप्रेन्योर में दूसरे की चीज वो एडोप्ट करता है, कब करेगा, जब उसको लगेगा कि बिजनेस में नुकसान होने वाला है। एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर मतलब वो कभी भी दूसरे की चीज जो डेवलप की है वो कभी भी एडोप्ट नहीं करेगा, बट उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसको लग रहा है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वही सही है, दो उसका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। तो दैट वाज योर मेन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Then, based on type of the business, we have learned about the trading entrepreneur, manufacturer entrepreneur, and we have learned about the agriculture entrepreneur. Trading entrepreneur मतलब मैन्युफैक्चर से गुड्स खरीदे और कस्टमर को सेल किया। एज ए इंटरमीडिएट यू विल बी ट्रेड एंटरप्रेन्योर। मैन्युफैक्चर एंटरप्रेन्योर मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चर एंटरप्रेन्योर मतलब यू विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड देन यू विल आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड यू विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। ये टाइप ऑफ बिजनेस में ही है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर मतलब हु अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दैट वाज योर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होगा, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होगा। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, ठीक है, बिल गेट्स, ठीक है। एंड नॉन टेक्निकल जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करे पर दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज करता है। उसके बाद बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है, बेस्ड ऑन ओनरशिप में क्या हो सकता है आपका यहाँ पे बेस्ड ऑन ओनरशिप में दे कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप इट कैन बी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप जो खुद इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है, स्टेट एंटरप्रेन्योर जो इट बिन एक्टिविटी इज बीइंग अंडरटेकन बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, एंड जॉइंट एंटरप्रेन्योर मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट का दोनों का कंबाइन, दैट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। उसके बाद बेस्ड ऑन जेंडर, मेल एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर। मेल एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होगा, मेल एंटरप्रेन्योर इज एंटरप्रेन्योर बीइंग स्टार्टेड बाय अ मेल, हर एक चीज जो ऑपरेट हो रही है वो मेन एंटरप्रेन्योर से हो रहा है। एंड फीमेल जो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन पढ़ा है। उसके बाद बेस्ड ऑन द साइज दैट इज स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अप टू 1 करोड़। मीडियम स्केल मतलब जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, अबव 1 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। एंड लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर उसका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मोर देन 5 करोड़। So that was your types of an entrepreneur. Hope you are clear with this unit number 1. Every
point in unit number 1 is being covered in the video. The live section में जो टॉपिक बाकी है हम लाइव सेक्शन में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो दिस वीडियो इज फॉर द दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूस वीडियो नहीं देखते, तो एटलीस्ट वो लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स रेगुलर वॉच करते हैं उसको पता ही होगा कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ा है, but every student need to watch it so you can have a rough idea about the unit number 1. So thank you student for listening.